This is our last lecture, design of valley curve. Okay, first tell me what is the name of this element? Which element we were discussing? Geometric design. Which element of geometric design we were discussing? This valley curve comes under which element? Horizontal alignment, cross sectional, or vertical? Hello. Hello, ma'am. Vertical. Yes, vertical. Okay. So we have discussed the summit curve, and this is our next vertical alignment, which is your valley curve. Okay. So these are the topics that we will cover today. Forms of the valley curves, design of valley curves. There will be some formulas, and based on that formula, we will solve one problem. Okay. And at the last, we will solve some numericals based on your overall everything, horizontal, vertical, everything will be coming. Okay, in this last problem. So that's why it's written as revision. Now see, objective, you have already gone through this. Okay, what is the objective of vertical curve? To provide smooth profile. Okay, we are changing our gradient. Here vertical alignment, horizontal alignment means changing of the direction. Okay, whenever we are changing our direction, we need to provide horizontal alignment. That means horizontal curve. Now here we are dealing with the vertical alignment. So here what we are doing, we are changing the gradient. Okay, either from up level to low grade or from low gradient to up gradient. Okay, so in between that two gradient, one alignment element must be designed, which is your vertical curve. Okay, now that may be valley curve or that may be summit curve. See, summit curve, it looks like this, and valley curves, it looks like this. Okay, now remember that while designing this summit curve, we must have idea about, we must consider two funda. Okay, what is this? First is the driver's eye level. Okay, driver's eye level, as well as the object, height of the object from the surface, that must be considered. Okay, whereas in this vertical today, what we are learning, valley curve, right? Whereas in this type of the valley curve, the two important consideration is what? The level of comfort. Okay, and it depends upon this headlight distance. Okay, the valley curve should be designed such that when we are traveling from this valley curve, the distance which we can see in front of us, that must be equal to the headlight side distance. Okay, minimum should be headlight side distance, HSD. So while designing this term valley curve, we will discuss about, we will see this HSD term मैम also. Yes. मैम दो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं ग्रुप में बोल रहे हैं Okay. ठीक है, ओहो, कौन आ रहा है? तो so this is your valley curve. See here, there is one angle. Okay, this is called the beam angle, headlight beam angle. Okay, here it is written beta, but in our formula we have written it as alpha. Okay, it may be by beta or alpha, both are same. So this alpha must be of 1 degree. Okay, as per the design, this alpha or beta is equals to 1 degree. Okay, and your we must consider the headlight, the distance of the level of this headlight from the surface, that height must be considered, which is determined, which is denoted as h. So these two terms must be considered while designing this valley curve. Okay, first is the headlight level from the surface, and what is the beam angle. Okay, headlight beam angle. Someone is trying to join or what? See, this is the case. In case of summit curve, here this gradient, that is what? This is N2 and this is N1. We have already discussed this gradient is denoted by N. Okay, so N1 and N2.
So in this case, n2 will always be greater than n1. You have solved so many problems also there. Also you can see that this n2 second gradient is always greater, is always lesser than your first gradient. Okay, in case of summit curve, whereas in case of valley curve, vice versa. That means your n2 will be greater than the n1. See, in this case, what is this? This is an upgrade. Okay, here it is given as g2, where whatever it is g2 or n2, and here it is downgrade. So downgrade means the upgrade. So downgrade will be negative, upgrade will be positive. We know that. So we can say that upgrade, this g2 is greater than g1. So in case of valley curve, there are many forms of valley curves. For every form, we are saying that this n2 will be greater than n1. This may come in your MCQs also. Okay, so we must remember these conditions. So these are the forms. See, these are the forms of the valley curve. See, all these are valley curve only, but they are of different categories. Okay, see here. Here it is negative. Okay, here also it is negative. See, both these gradient are down gradient only, but here this will be slightly greater than the this second first case. So it is satisfying this one. Okay, n2 is slightly greater than n1. In this case also, see, this is negative gradient, where this is level gradient. Level means 0. Okay, so always your 0 value will be greater than the negative value. So here also we can see that n2 is greater than n1. Similarly, here also this is negative and this is positive. Obviously positive is greater than negative, so here also it is satisfying. और स्टूडेंट ज्वाइन होने की कोशिश करें. Okay, ask them to join first. Okay. आयन हुक कहाँ गया? Okay. So see, this is the case. Okay, vertical valley curves. Now design. As I said, it depends on the comfort condition and depends on the headlight side condition. Based on these two, we have to determine two length. Your design means what? We have to determine the length of the valley curve. Okay, so length based on comfort condition and length based on headlight side distance. Okay, and it's and lowest point must be located such that it provides proper drainage. This is another condition, but these two conditions are important. Okay, now what are the types of the curve which is very suitable for this kind of curve? Is what? Cubic parabola. This is important for your MCQ. Okay, they will give you some different options. They will ask you which is very suitable for valley curve. So cubic parabola. Why? Because there will be no sudden jerk, there will be no sudden discomfort, and the rate of change of acceleration is gradual. There is not sudden change in the rate of acceleration. Okay, there will be gradually change in the acceleration. So for that reason, for this many reason, cubic parabola is very suitable for valley curve. Okay, now see, design based on the comfort. Now suppose this is your arc. Okay, suppose this is your arc. Okay, of radius, say the radius is your r, and the angle that it forms is suspended is your theta. Okay, so can we say that, and the length of this arc is suppose L. So can we say that L is equals to r theta? L arc length is equals to r into theta. Okay. Now in case of your valley curve, we will so in case of valley curve, we can write that Ls is the length of this valley curve. Okay, r is the radius of this valley curve, and theta is the angle of deviation, which is n, this theta. Okay, angle of deviation, we have already know how to derive this angle of deviation. This is the, what is the formula of angle of deviation? What is the formula of angle of deviation?
Yesterday also you people solved problem, right? How you establish this n formula? How you calculated this n? For calculating this n, what are the data that are required? n1 minus n2. Yes, the gradient of this slope and the gradient of N1 this minus slope. Yes, so that is the algebraic sum of two gradients. Okay, subsequent two gradients. So n we can derive. Okay, we can calculate if we know value of n1 and n2. R will be provided, so we can write the formula like this. Okay, so in place of this we are writing ls r equals capital R, but theta is an L. So from this we can simplify that R is ls by n. Why we are deriving? I will show you in the next step. We will put this, substitute this value of R as ls by n. Okay, see, and as per the design it is said that length of the transition curve, okay, length of the transition, this length of the curve is the combination of two transition curve. Okay, so this is one transition curve, this is second transition curve. Okay, so ls and ls. Okay, so the total length of the curve will be twice of ls. So like that. Okay, this is the condition. So length of the valley curve will be twice of the length of transition curve, where ls we know that ls formula we have already derived. There are three criteria, three formulas. Okay, first is based on the rate of change of super elevation, introduction of super elevation. Second is rate of change of acceleration, and third one is based on the empirical method. Okay, so we are dealing with the comfort. So comfort means it is so here C term must be considered. Comfort का मतलब क्या है कि हम लोग rate of change of acceleration के ऊपर हम लोग ये अपना क्या बोलेंगे, ये डिजाइन करेंगे. ओके, सो यहाँ पे इसीलिए एल एस का मतलब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला में वी आर यूजिंग दिस वन, नॉट द अदर टू. ओके, दूसरा है तुम्हारा सुपर एलिवेशन इंट्रोडक्शन के हिसाब से, और ये है तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन के हिसाब से. ओके, सो वी क्यूब बाई सी आर, ये फॉर्मूला शायद सबको पता है तुम लोग को. ओके, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो आर का जगह पर ये वाला बिठा दो. तो ls by n आ जाएगा. ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दो. सो यहाँ से ls ऊपर चला जाएगा तो ls स्क्वायर वी क्यूब n बाई सी ये आ जाएगा. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ls इज इक्वल्स टू n वी क्यूब बाई सी स्क्वायर रूट. ओके, टू द पावर हाफ. नाउ अब ये वाला क्या है, लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द वैली कर्व इज ट्वाइस ऑफ ls. तो सिंपल हम यहाँ से लिख सकते हैं. So therefore the length of the valley curve will be twice of ls, which is twice of this. Okay, see, derivation is not so important. ठीक है, लेकिन कैसे आए वो हमको जानना है. Derivation तुम लोग को शायद नहीं आएगा. They will give you, ask you only to find the length based on the comfort. बस यही बोलेगा. Then we have to use this formula. Okay, so this is based on the formula, based on the comfort. This is the formula for deriving the length of the valley curve. Okay, where n is the angle of deviation, v is your velocity, okay, design speed, c is your rate of change of acceleration. इसका फॉर्मूला शायद सबको पता है. कैपिटल सी का फॉर्मूला पता है ना, कैसे निकालते हैं? इफ नॉट प्रोवाइडेड 80/75 प्लस r करके एक था ना फॉर्मूला, वही है. ओके, Yes, ma'am. नाउ बेस्ड ऑन द हेडलाइट, देखो दो केस बोले थे. बेस्ड ऑन कंफर्ट ये वाला फॉर्मूला है. नाउ बेस्ड ऑन द हेडलाइट साइड डिस्टेंस दो केस हो सकता है यहाँ पे भी. ठीक है, अब HSD तुम लोग को दिया नहीं रहेगा. सो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड SSD. वी नो दैट HSD इज 1 टाइम्स ऑफ SSD. ओके, और ISD क्या है, ट्वाइस ऑफ SSD. ये याद रखना है. ओके, सो HSD दिया नहीं रहेगा, then we have to determine SSD. Okay, so ultimately we can say that HSD equals to SSD. So दो केस है, एक है L greater than SSD, जैसे वर्टिकल कर्व मतलब सब कर्व में जैसा था वैसे यहाँ पे भी वही है, ग्रेटर देन और लेसर देन. ओके, सो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है. देखो सिमिलरली पिछले वाला जैसा फॉर्मूला था वैसा ही है, n स्क्वायर बाई 2 इंटू h1 प्लस s tan अल्फा. देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक अल्फा टर्म आ रहा है, एक h टर्म आ रहा है. ये अल्फा क्या था, दिस इज द बीम एंगल 1 डिग्री, एंड h इज व्हाट, हेडलाइट का तुम्हारा सरफेस से कितना ऊपर है हेडलाइट. ठीक है, और रोड सरफेस से कितना ऊपर है, दैट इज h. ओके, सो ये एज पर ISC हेडलाइट
height of the headlight should be 0.75 and alpha is beam angle which is 1 degree. अगर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे so we will get this formula. h के जगह पर देखो 0.75 tan अल्फा ये है, ठीक है, करके ये वाला सिंप्लीफाई करने के बाद we are getting this formula. Ultimately for L greater than SSD is this formula. Similarly L lesser than SSD के लिए वही है 2s of ये वाला, यहाँ पे आप formulas में पुट कर दो h और अल्फा. Okay, so we are getting this one. तो ठीक है, so this is the formula for L for this case. Okay, where L is the length of the parabolic summit curve. This is not summit curve, this will be valley curve. Okay, where capital N is angle of deviation और S क्या है? S is the HSD, headlight side distance, which is nothing but 1 times of SSD. क्लियर है ये दोनों? so, देखो तीन ही फॉर्मूला है. हाँ. ये वाला है एक है, ठीक है, ये वाला सेकेंड, दिस इज थर्ड. ये दोनों एक ही केस के अंदर आता है लेकिन दो कंडीशन है. सो कैन वी सॉल्व वन प्रॉब्लम? यस मैम. यस तो क्लियर होगा और क्लियर होगा. ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. मैम ये सबमिट करना पड़ेगा? नहीं, नो नीड टू सबमिट, जस्ट तुम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है. देखो, अ वैली कर्व इज फॉर्म्ड बाय डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ descending gradient of 1 and 25. This is what? Negative, right? So n1 is negative. Okay, meeting an ascending gradient मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब positive, which is 1 in 30. So plus 1 and 30. Okay, design the length of the valley curve to fulfill both condition. देखा both क्या है? Fulfill both comfort condition as well as headlight side distance requirement. मतलब दोनों ही केस हमको कंसिडर करना है. ओके, for the design speed of 80 km/h. Now assume allowable rate of change of centrifugal acceleration. See, ये वाला जो बोला था, बहुत सारे प्रॉब्लम में they will not give you this C value, we have to determine. Okay, but in this case they have already provided you. Okay, so it is ये है तुम्हारा. Okay, 0.6. ये these are the given conditions. तो दो केस बोला है, ठीक है. फर्स्ट हमको क्या चाहिए? दो केस के लिए हमको फर्स्ट में क्या चाहिए था? अच्छा, उससे पहले क्या चाहिए था? HSD हमको निकाल लेते हैं. ओके, वी विल डिटरमाइन हेडलाइट साइड डिस्टेंस. ओके, नाउ हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ SSD. तो SSD निकालो पहले. SSD का क्या फॉर्मूला है? एज्यूम 2.5 सेकेंड, ठीक है. TR इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड. फॉर V इक्वल्स टू 80 के लिए F का वैल्यू है 0.35. ये तुम लोग कैलकुलेट कर चुके हो पिछले क्लास में ही. तो SSD इक्वल्स टू क्या है? सी, इन दिस केस ये क्या है? अगर तुम लोग तो बोल सकते थे मैम ये तो बोल सकते थे कि मैम ऐसे जाके जाएगा, ये तो सॉरी वैली कर्व है, तो यहाँ पे डिग्रेडेशन है, डिसेंडिंग है, यहाँ पे असेंडिंग है. तो हम क्या बोल रहे थे? SSD एट अपग्रेड एंड डाउनग्रेड दो फॉर्मूलाज है, राइट. लेकिन यहाँ पे असेंडिंग है, सॉरी डिसेंडिंग है, फिर असेंडिंग जा रहा है. तो क्या ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा ग्रेडियंट की वजह से. जो चेंज आएगा SSD में, इट हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड. तो दैट्स व्हाई हम लोग कंसीडर क्या करेंगे? वी विल यूज फॉर्मूला फॉर लेवल ग्रेडियंट. मतलब जब रास्ता एकदम प्लेन था तो तब फॉर्मूला क्या था SSD का? दिस इज द फॉर्मूला. ओके, इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया गया है. ये जस्ट रिमेम्बर करना. ओके, तो करके ये वाला वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे, V इज इन स्मॉल, तो 80 किलोमीटर का V क्या है? 22.22. TR हम बोले थे 2.5. F will be 0.35 for 80 km/h. तो यहाँ पे यू पुट कर दो. ओके, so after putting the formulas, after putting the substituting the values, we are getting SSD equals to 127 meter. ये तो इतना दूर तक सबको आया है. ये वाला कैलकुलेशन बहुत बार कर चुके हो तुम लोग, ठीक है. Yes. Now what is HSD? HSD is nothing but 1 times of SSD. ठीक है, ये याद रखना है. So यहाँ पे हम लोग का S, जो ये फॉर्मूला था S, ये SSD का जो भी है ये S फॉर्मूला, दिस इज योर 127. तो फॉर्मूला में ये 127 बिठेगा. Now what is the next step? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बेस्ड ऑन द कंफर्ट, ये वाला फॉर्मूला है बेस्ड ऑन द कंफर्ट. इसके लिए क्या क्या चाहिए? C चाहिए. C इज गिवन 0.6, V 22.2 ये भी दिया है, ठीक है. मतलब 80 km/h है. मैम डेरिवेशन एंगल, डेविएशन एंगल. यस, वेरी गुड. एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है. एंगल ऑफ डेविएशन. तो n1 n2 पता है हमको. नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज द अलजेब्रिक सम. सो n1 इज नेगेटिव, तो नेगेटिव भी बिठेगा. n2 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव भी बिठेगा. देखो ऐसे,
n1 नेगेटिव का नेगेटिव भी बिठा दिया, माइनस का माइनस है और पॉजिटिव का पॉजिटिव करके ये वाला आएगा। अब देखो तुम लोग को आ सकता है कि मैम यहाँ पे तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव यूज करेंगे, नहीं, नो नीड टू यूज दिस नेगेटिव, ओके, ओनली यूज द मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला में सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज करना है, ओके, ये याद रखना। यस मैम। नाउ डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ द वैली कर्व बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन। तो कंफर्ट कंडीशन के लिए हमको क्या चाहिए था, सी चाहिए था, एन चाहिए था और वी हमको दिया ही है ऑलरेडी, राइट, एंड दिस इज द फॉर्मूला। नाउ पुट एवरीथिंग, तो क्या आएगा देखो, ये v इज इन स्मॉल, ओके, स्मॉल v है तो 22.22 रहेगा, तो ये आ रहा है, ओके, 73.23। n का वैल्यू है 11, ये जो देखो आई एम टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड 11/150, ओके, c इज ऑलरेडी गिवन 0.6, ओके, तो करके देखो ये वाला फॉर्म ये आएगा, ओके। नाउ दिस वाज योर बेस्ड ऑन कंफर्ट, तो फर्स्ट केस हमको हो गया, सी बेस बोथ दोनों का ही निकालना है, तो कंफर्ट कंडीशन के अनुसार तुम्हारा लेंथ क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द वैली कर्व, ओके। नाउ बेस्ड ऑन द एचएसडी, अब इसके लिए हमको एज्यूम करना है कि L इज ग्रेटर देन एसएसडी है या कि L इज लेसर देन, फिर चेक करना है सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ बेस्ड ऑन एचएसडी, ओके, फॉर एचएसडी, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, स्टेप 1 एसएसडी इक्वल्स टू 127, ये है n दिया है, स्टेप 2 से हमको n निकल आया है, ओके। नाउ लेट अस एज्यूम, फर्स्ट एजम्पशन हम लोग करते हैं कि L इज ग्रेटर देन SSD, तो L इज ग्रेटर देन SSD का ये वाला फॉर्मूला है, L का वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा, कैलकुलेशन है, अभी कुछ कॉपी बैठा है, कैलकुलेटर लेकर बैठे हो, ओके, ये कैलकुलेट करते हो, देखो 11/150 into 127, 1.5 plus 0.035 into 127 कितना आएगा, हम भी करते कैलकुलेट, मैम 198। 198, let us see, 196 हाँ 198, हमारा भी 198.9 समथिंग आ रहा है, ओके, 197 आ रहा। अच्छा ठीक है, अप्रॉक्स यही है, ठीक है, 199 मीटर, ओके। अब देखो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है हम लोग का, एसएसडी कितना था 127, हम एज्यूम फर्स्ट एजम्पशन ही हम किए कि L इज ग्रेटर देन SSD, L का वैल्यू ऑलरेडी 199 आ चुका, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 127, सो ये क्या है हम लोग का सेटिस्फाई, तो हमको नेक्स्ट स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है, ओके। सो योर लेंथ will of the valley curve depending for HSD will be 199 and for comfort is 73.23। अगर ये satisfied नहीं होता तो फिर हमको दूसरा कंडीशन में जाना पड़ता है, which is L less than SSD, okay, clear? यस मैम। यस मैम। Okay. अच्छा ये वाला हम लोग दूसरा प्रॉब्लम है, इट इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस लेक्चर्स, ओके, मतलब कि यहाँ पे सुपर एलिवेशन भी है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी है, ट्रांजिशन भी है, सब है, तो कैसे आए, ऐसा ही आता है तुम लोग का प्रॉब्लम, ऐसा टुकड़ा टुकड़ा में नहीं आता, एक मतलब एक टाइम में सब कुछ दे देगा, ओके। सो अ स्टेट हाईवे पासिंग थ्रू अ रोलिंग टेरेन, देखो ये भी दिया है, ये ट्रांजिशन कर्व में जब करेंगे तब आएगा, ओके, हैज अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस इक्वल टू द रूलिंग मिनिमम रेडियस, ओके, ये याद रखना है, रूलिंग मिनिमम रेडियस, ओके। तो यहाँ पे r का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन बोला है r इज इक्वल टू रूलिंग मिनिमम रेडियस, तो मिनिमम रेडियस लेने के लिए हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए वो हम दिखा देंगे, ओके, क्या क्या वैल्यू चाहिए, r रेडियस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन दिस रूलिंग मिनिमम रेडियस। नाउ व्हाट इज दिस, ये सब कंडीशन दिया है, बोला है डिजाइन ऑल द ज्योमेट्रिक फीचर्स ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कर्व, मतलब कि हॉरिजॉन्टल कर्व में जो जो ज्योमेट्रिक फीचर्स, क्या क्या आता है हॉरिजॉन्टल कर्व में, व्हाट आर द डिफरेंट ज्योमेट्रिक फीचर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, क्या आता है बोलो, कर्व में क्या आता है, हॉरिजॉन्टल कर्व में क्या क्या डिजाइन करना पड़ता है हमको, हॉरिजॉन्टल कर्व के अंडर क्या क्या आता है, व्हाट वी हैव डिजाइन, रेडियस तो हम लोग बना दिए, हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब है रेडियस आएगा, जहाँ पे कर्व आता है वहां पे क्या देना पड़ता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो वी हैव टू डिजाइन एक्स्ट्रा वाइडनिंग आल्सो, और क्या क्या देना पड़ता है,
सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन भी डिजाइन करना है, ठीक है। ट्रांजिशन कर्व भी डिजाइन करना है, ठीक है। सो ये सब हमको डिजाइन करने के लिए बोला। देखो ये दे हैव नॉट आस्क्ड यू, ओके, दे हैव ओनली आस्क्ड यू फाइंड आउट डिजाइन ऑल द ज्योमेट्रिक फीचर, मतलब जितना भी आता है सब उसको डिजाइन करते हो, मतलब सब कुछ आया इसमें। ज्योमेट्रिक में क्या क्या है तुम्हारा, रेडियस आया, सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन कर्व, एक्स्ट्रा वाइडनिंग सब आ रहा है, ओके। अब सेकंड क्या बोला है, स्पेसिफाई द मिनिमम सेटबैक। अब देखो सेटबैक डिस्टेंस भी दे दिया है, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडीशन दे दिया है, फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द टू लेन। देखो टू, ये दिस इज फॉर मल्टी लेन। सेटबैक डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर सिंगल लेन है एंड फॉर मल्टी लेन। तो मल्टी लेन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये याद रखना है, ओके। ऑन द सेंटर लाइन ऑफ द टू लेन ऑन द इनर साइड। अब इनर साइड का बोल दिया है, तो वहां पे भी हम बोले थे कि सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड एक होता है और एक होता है फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द इनर साइड। दो केस होता है, ओके। तो उसमें कौन सा केस का दो अलग अलग फॉर्मूला है वो करना है। up to which the building etc obstruction region should not be constructed, मतलब m का वैल्यू निकालो, so that the intermediate side distance is available। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, फॉर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, नॉट फॉर योर OSD एंड नॉट फॉर योर SSD, बोल दिया है फॉर ISD के लिए निकालो, ओके। थ्रू द सर्कुलर कर्व, एज्यूम द लेंथ ऑफ द सर्कुलर कर्व अगेन ग्रेटर देन द साइड डिस्टेंस। अब ये भी दे दिया है कंडीशन कि लेंथ विल बी L विल बी ग्रेटर देन SSD। ये है सेटबैक डिस्टेंस का। थोड़ा रिकैप्चुलेट करो तो याद रहेगा तुम लोग को कि देखो सेटबैक डिस्टेंस का क्या बोले थे हम, L ग्रेटर देन SSD होगा और एक होगा L लेस देन SSD होगा। और उसके अंदर भी दो दो केस है, ईच केस के अंदर भी दो दो कंडीशन है। एक है तुम्हारा फॉर सिंगल लेन, फॉर मल्टी लेन, ओके। अब मल्टी लेन के लिए भी दो केस है, एक है फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द रोड और दूसरा है फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द इनर साइड। सो एवरी कंडीशन दे हैव गिवन, तो तुमको मतलब पर्टिकुलरली उस फॉर्मूला को ही यहाँ पे पुट करना है जो कि ये सब सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो देखो क्या क्या निकालना है, रूलिंग फर्स्ट निकालो, आर रूलिंग रेडियस, ठीक है, सुपर एलिवेशन ई निकालो, एक्स्ट्रा वाइडनिंग WE, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, फिर बोला है ISD निकालो, फिर सेटबैक डिस्टेंस एज्यूमिंग LC ग्रेटर देन S फॉर मल्टी लेन, ओके। नाउ ये है तुम्हारा फॉर्मूला। देखो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड रेडियस। अगर रेडियस नहीं दे रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करके तुम लोग निकाल सकते हैं। ये सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला है, ओके, ये देकर हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि दे आर आस्किंग फॉर द मिनिमम रेडियस, राइट। तो आर मिनिमम होने के लिए ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सी दिस इज व्हाट, दिस टू वैल्यूज आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। ये आर नीचे की न्यूमरेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है, मतलब ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E एंड F है आर का वैल्यू। तो आर कम करने के लिए ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, फॉर आर टू बी मिनिमम दिस वैल्यू शुड बी, ये क्या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि आर बढ़ेगा तो ये दोनों घटेगा, आर घटेगा तो ये दोनों बढ़ेगा। अब हम बोलेंगे कि आर मिनिमम चाहिए तो ये दोनों का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम, राइट। मतलब कि क्या है, देखो ये घटेगा मतलब ये बढ़ेगा, तो ये जिसको सबसे कम वैल्यू हमको चाहिए तो हमको ये वाला सबसे ज्यादा वैल्यू पुट करना है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखो आर का इक्वल्स टू क्या है, V² G E + F, ये नीचे आ गया, ओके। अब यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वाला ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, ओके। सो V इज गिवन, E इज मैक्सिमम कितना है, E का 0.7 है, सॉरी 0.07 है ये, ओके 0.07 है, एंड F विल बी 0.15, ओके। मैक्सिमम यही है दोनों का वैल्यू, करके देखो R का वैल्यू आएगा 229, अप्रोक्सीमेटली 230। सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, आर रूलिंग ऐसे निकाल सकते हैं। अगर तुमको सिर्फ क्वेश्चन में 5 मार्क्स का भी ये आ सकता है कि डिटरमाइन द मिनिमम रूलिंग रेडियस, ओके। तो मिनिमम रूलिंग रेडियस के लिए हमको मैक्सिमम E एंड मैक्सिमम F का वैल्यू पुट करना है, वेयर इज E का मैक्सिमम 0.07, F का 0.15, क्लियर। यस मैम। नाउ सुपर एलिवेशन E निकालो, तो ये तो इजी है, तुम लोग तो करते आ रहे हो। अब यहाँ पे बोल दिया है रेडियस ऑफ द कर्व इज इक्वल्स टू मिनिमम रूलिंग रेडियस, मतलब कि R इज इक्वल्स टू है 230, ठीक है। डिजाइन स्पीड है 80 km/h, विच इज अगेन
2 मीटर पर सेकेंड। तो सुपर एलिवेशन डिजाइन करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था, यही फॉर्मूला से तो हमको निकालना है सुपर एलिवेशन, राइट। तो इसमें हमको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एफ का वैल्यू क्या होगा, for designing super elevation in first step what we have assumed f to be फर्स्ट स्टेप में क्या एज्यूम किए थे, f को हम कुछ वैल्यू लिए थे कि नहीं लिए थे, f का वैल्यू। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है तुम्हारा, फर्स्ट F plus 0 थोड़ा f should be 0 and velocity v should be 75% of the design speed, मतलब 0.75 v लेना है, ओके। तो यहाँ पे पुट कर दो f इक्वल्स टू 0 है, v के जगह पर 0.75 v पुट कर दो, तो आएगा क्या, v है तुम्हारा 22.7, r है तुम्हारा 230, करके हम लोग का e का वैल्यू देखो, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.124, ठीक है। लेकिन Yes, e का ma'am. मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0.07, मैक्सिमम वैल्यू इज 0.07। नाउ सी दिस इज ग्रेटर देन 0.07, तो हम मैक्सिमम e का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, 0.07। तो रिमेनिंग कौन टैकल करेगा, रिमेनिंग विल बी टैकल बाय f। उसके लिए सेकेंड स्टेप में जाना है, तो अब हमको क्या करना है, टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e एंड v इज इक्वल्स टू द डिजाइन स्पीड। अब इसमें 75% नहीं कंसीडर करना है, सेकेंड स्टेप में टोटल डिजाइन स्पीड ही कंसीडर करना है, मतलब e का वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम 0.07 ओनली इफ ये वाला कंडीशन आएगा, ओनली इफ ये वाला कंडीशन, देन ओनली वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, ओके। अगर ये लेस देन आ जाएगा तो वही तुम्हारा e का वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि यही है डिजाइन सुपर एलिवेशन रेट। तो यहाँ पे e का वैल्यू विल बी 0.07, v विल बी 22.2, ठीक है। अब करके f का वैल्यू देखो आएगा हम लोग को अगेन 0.149 विच इज लेसर देन 0.15। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद तुम्हारा मैक्सिमम f का वैल्यू होना चाहिए कितना, 0.15, लेकिन हम लोग जो डिजाइन करके हम लोग का आ रहा है 0.149, तो ये ठीक है ना कि गलत आ रहा है। इसके बाद हमको और जाने की जरूरत है स्टेप, या वी हैव टू स्टॉप, नहीं मैम ठीक है मैम। ठीक है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज कमिंग विद इन द लिमिट। अगर इससे भी ज्यादा f का वैल्यू आ जाता, मतलब ज्यादा f देना चाहिए था, लेकिन हम लोग ज्यादा f नहीं दे पाएंगे, तो क्या करेंगे, हम स्पीड को रिडक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे अब करने की जरूरत नहीं है, विच इज कमिंग विद इन द लिमिट, सो वी विल स्टॉप आवर डिजाइन, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, मतलब कि e का वैल्यू शुड बी 0.07 एंड f का वैल्यू शुड बी 0.149, ओके। सो द डिजाइन सुपर एलिवेशन रेट कितना है, 0.07 is safe for this condition, okay. Now next element is what, extra widening, okay। एक्स्ट्रा वाइडनिंग का तो इजी है, इसके लिए क्या क्या चाहिए हमको, v चाहिए, ठीक है। फॉर 2 लेन बोला है यहाँ पे, 2 लेन, सो n इज इक्वल्स टू 2, क्वेश्चन में 2 लेन बोला है, ओके। सो n इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो विड्थ ऑफ द पेवमेंट क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द पेवमेंट, एक पेवमेंट का है तुम्हारा 3.5, तो 2 का कितना होगा, इंटू 2 कर दो, एक लेन विड्थ है 3.5, सो डबल 2 लेन बोला है तो 2 इंटू 3.5 7 मीटर, ओके। एंड व्हील बेस नहीं दिया है, सो अगेन एज्यूम विच इज 6 मीटर L, करके WE का वैल्यू कितना आएगा, निकालो तो। So radius we have already calculated, okay, from step A to 30 है। क्या क्या चाहिए इसमें, क्या क्या चाहिए इसमें, यही सब चाहिए, n चाहिए, L चाहिए, R चाहिए, V चाहिए, राइट। सो V दिया है, n ऑलरेडी प्रोवाइडेड, राइट, V ये भी दिया है, ठीक है। R we have already calculated, बोला है रेडियस विल बी इक्वल टू रूलिंग रेडियस, तो R is nothing but this value itself, करके कितना आएगा WE। नाउ यहाँ पे v इज इन कैपिटल, रिमेंबर दिस v इज इन कैपिटल, मतलब FT ही दिखेगा, तो कितना आएगा, कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं। 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई r इज 230 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 9.5 अंडर रूट r 230, मैम 0.71 0.71, यस मैम 0.71 है। okay। So let us see
वेरी गुड. सो 0.712. ओके, तो दिस इज योर एक्स्ट्रा वाइडनिंग. देखो ये थर्ड वाला एलिमेंट भी आ गया. हॉरिजॉन्टल कर्व का क्या क्या था तुम्हारा? रेडियस आ गया 230, ई आ गया 0.07 और डब्ल्यू आ गया तुम्हारा 0.712. ओके, सो Yes, व्हाट ma'am. विल बी द टोटल विथ इन द कर्व में? क्या करना है, कर्व में तो एक लेन, दो लेन है, उसका तो विथ है तुम्हारा. अगर एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं होता तो 7 मीटर था, लेकिन कर्व आने पर थोड़ा हमको और एक्स्ट्रा विथ देना है. कितना? 0.7. सो टोटल विथ इन द कर्व क्या है? टोटल विथ ऑन द कर्व विल बी 7 प्लस 0.712 विच इज 7.71 मीटर. मतलब कर्व में टोटल चौड़ाई विथ रास्ते का इतना होना चाहिए. ठीक है. नाउ दूसरा क्या था? ट्रांजिशन कर्व. ठीक है, ट्रांजिशन कर्व के लिए हमको देखो ये डाटा चाहिए रहेगा. v चाहिए, r चाहिए, e का हम लोग कैलकुलेट कर दिए. एक्स्ट्रा विथ मतलब विथ ऑफ पेवमेंट एट द कर्व, मतलब ये प्लस ये 7 प्लस 0.71, तो ये आ रहा है. और बोला था क्या? रोलिंग टेरेन बोल दिया था. ओके, सो रोलिंग टेरेन के लिए रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन 1 in n is 1 in 150. ये हमको एज्यूम करना है. ओके, रोलिंग टेरेन के लिए हम 1 in n is 1 in 150. तो फर्स्ट क्या था? 3 केस है, 3 कंडीशन है. नाउ डिजाइन फर्स्ट क्या है? डिजाइन बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन विच इज c. यहाँ पे c का वैल्यू पिछले वाले प्रॉब्लम में c का वैल्यू दिया था, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c विच इज दिस फॉर्मूला. तो ये करने से क्या आ रहा है? c का वैल्यू आ रहा है 0.52 विच इज विद इन द लिमिट. ठीक है, 0.5 और 0.8 के बीच में, तो ओके. तो 0.52 हम लोग ले सकते हैं. ओके, अब ये वाला c यूज करेंगे कहाँ पे? बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, बेस्ड ऑन दिस मेथड, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं. ls इज इक्वल्स टू v क्यूब बाय cr. ओके, तो पुट करो. v है तुम्हारा 20.2, c है हम लोग का कैलकुलेट करके 0.52, r वी हैव ऑलरेडी नो 230. ओके, सो इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 92. तो फर्स्ट केस के हिसाब से ls इज 92. ओके, नाउ सेकेंड केस में क्या क्या चाहिए? सेकेंड केस इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन. ओके, 1 in n. नाउ एज्यूम, वहां पे भी 2 केस था. एक था कि रोटेशन अबाउट द इनर एज और रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन. तो हम लोग बोलते हैं ठीक है, एज्यूम करते हैं रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन. तो ये वाला फॉर्मूला है. ये वहां पे फॉर्मूला में e हम लोग का कितना था? 0.07. 1 in n का ये जो है 1 in n, ये एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है. रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, दिस इज नॉट एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, ये वाला है तुम्हारा, हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांजिशन कर्व कर रहे हैं. तो ट्रांजिशन कर्व में ये n जो है, दिस इज योर, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन का 1 in n है, मतलब ये 150 होगा. ओके, तो w प्लस w इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड. व्हाट इज ls? कितना आ रहा है? ls कितना आएगा? E is 0.07, n is 150. अच्छा, बाकी रखी করছো নাকি চলে গেছো? हम लोग कर रहे हैं. हाँ करो. ये इतना आ रहा है देखो 40 पॉइंट. मैम 40.47. 40. ओके ओके, तो ये सेकेंड केस से 40.5. पिछले केस से तुम्हारा कितना आया था? 92. अब थर्ड टाइम, थर्ड वाला क्या है? एज पर IRC. IRC के हिसाब से दिस इज अ फॉर्मूला, ये इंपेरिकल फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला 2.7 कैपिटल V स्क्वायर बाय R. तो ये कैपिटल V है तुम्हारा 80, R इज 230 करके कितना आ रहा है देखो? 75.1 आएगा. ओके, अब बोलो ये तीनों में से कौन सा लेंगे हम लोग? ls का वैल्यू, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 92, 40.5 या 75.1? Which one? मैम मैक्सिमम वैल्यू है. Yes, maximum. So the highest value लेना है इनसे. ठीक है, so the length of the transition के लिए 92. तो ये स्टेप भी हो कंप्लीट, ये एलिमेंट भी हो गया हम लोग का डिजाइन. ई हो गया, स्मॉल ई हो गया, और एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो गया, रेडियस हो गया, और तुम्हारा ट्रांजिशन कर्व हो गया. अब आते हैं सेटबैक में. ठीक है,
तो ये सब तीनों है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब ये है तुम्हारा सेटबैक, ठीक है। आईएसडी निकालना है, सेटबैक निकालना है। आईएसडी के लिए क्या चाहिए हमको? फर्स्ट आईएसडी इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एसएसडी? 2 times of 2 SSD. टाइम्स ऑफ एसएसडी। तो एसएसडी two के लिए times. क्या क्या चाहिए? वेलोसिटी, तुम्हारा टीआर, और तुम्हारा क्या चाहिए? एफ चाहिए, राइट। तो डिजाइन स्पीड 80 दिया है, ठीक है। डिजाइन स्पीड 80 के लिए हमको क्या क्या चाहिए? फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 80 वी ऑलरेडी नो दैट एफ स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू कितना है? 0.35 है, ठीक है। एंड एज्यूम टीआरएस 2.5। तो करके ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं, देखो करके। अब आएगा तुम्हारा क्या? 127 आता था, लेकिन हमको चाहिए आईएसडी विच इज ट्वाइस ऑफ एसएसडी। सो 2 × 127 करके आ रहा है 255 अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो आईएसडी भी कैलकुलेशन हो गया। ओके, अब हम लोग का जब सेटबैक डिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो वहां पे जो एस टर्म रहेगा, दैट एस इज नथिंग बट दिस आईएसडी, मतलब कि एस इज इक्वल्स टू 255, ये कंसिडर करना है। ओके, सो setback distance to provide s is equals to 255 m, okay, when LC is greater than s। ये सब condition are provided in the question itself for 2-lane highway, ठीक है। इसके लिए 2-lane highway जहाँ पे भी आएगा, देखो एक small d का calculation चाहिए था। देखो ये 2 lane है, this is inner lane, this is outer lane, okay, whereas this is the center line of the road, total road। और ये जो डॉट डॉट है, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन एंड दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द आउटर लेन। ओके, सो नाउ डी इज व्हाट? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइंस। ओके, तो टोटल लेंथ कितना होगा? टोटल विड्थ कितना होगा एट द कर्व? टोटल विड्थ एट द कर्व कितना था? कितना डिजाइन किए थे हम लोग? एक्चुअल दो लेन का एक्चुअल विड्थ कितना है? 7 मीटर है। 2 × 3.5 7 मीटर, राइट। ईच लेन का है तुम्हारा 3.5 3.5 ऐड करो 7 मीटर। एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितना आ रहा है? 0.79। तो टोटल विड्थ ऑफ द पेवमेंट इन द कर्व इज व्हाट? सी W + W इज इक्वल्स टू 7.71, ठीक है। तो इसको अब हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे यूज करेंगे दिस फॉर्मूला। सो D इज इक्वल्स टू व्हाट? टोटल विड्थ एट द कर्व डिवाइडेड बाय 2 × नंबर ऑफ लेन्स। तो नंबर ऑफ लेन्स कितना है? यहाँ पे 2 लेन है, तो 2 पुट कर दो। विड्थ एट द कर्व कितना है? 7.75। तो D आएगा कितना? 1.93 मीटर। क्लियर है ना ये? Yes, ma'am. ये D हम लोग को चाहिए फॉर्मूला में, इसीलिए हम लोग को D निकाल रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस SD साइड डिस्टेंस? ओके, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला था फॉर दिस केस, फॉर दिस पर्टिकुलर केस जहाँ पे तुम्हारा मल्टी लेन है, ठीक है। और वेर इज L इज ग्रेटर देन SSD, सॉरी L इज कितना बोला है? L इज ग्रेटर देन S बोला है। तो इस केस के लिए α/2 का ये फॉर्मूला था, थोड़ा याद होगा शायद फॉर्मूला, ठीक है। तो 180 S/2 पाई R - D पुट करो, कितना आएगा α/2? α/2 कितना आएगा? 180 इंटू S, हमको देखो S इज 255, ओके, R इज 230 एट D कितना है? 1.93। कर रहा हूँ। करो। कितना आ रहा है? 32 डिग्री 38। अप्रोक्स देखो 32 डिग्री आएगा, ठीक है। ओके मैम। नाउ सेटबैक डिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर दैट केस ये है, ठीक है। सो फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द रोड ये वाला। तो अब यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे R = 230, D 193, α/2 आ रहा है 32, तो करके अप्रोक्सीमेटली 37 आएगा। सो M इज योर सेटबैक डिस्टेंस इज 37। 37। देयरफॉर द मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस फॉर दिस केस कितना है? 37। 37। ISD आया 255, सेटबैक डिस्टेंस आया 37, ओके। 37। ओके। तो दीज आर द डिजाइन वैल्यूज, जो भी डिजाइन किए उसका वैल्यू क्या है। फर्स्ट आया था रूलिंग कितना है? R रूलिंग इतना है, E का ये है, W इतना है, ठीक है। LS 92 आया,
तो यही सब कैलकुलेशन है। देखो ऐसे ही तुम लोग का आएगा बड़ा सा प्रॉब्लम कि सब कुछ रहेगा एक साथ, ठीक है। तो सब कुछ तुम लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। Yes, ma'am. ओके, आई Okay. थिंक दिस इज क्लियर। Yes, ma'am. ओके ओके, Yes, ma'am. थैंक यू। ओके रुको, Thank हम you. अटेंडेंस वाला ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैम गूगल क्लासरूम में एक स्लॉट है। स्लॉट है, लेकिन यहाँ पे हमको मतलब दिखाई दे रहा है अटेंडेंस आ रहा है अभी, देखो दिखाई दे रहा है 17 जन। हाँ मैम 17 जन में। ठीक है, फिर अगर क्लियर नहीं है तो कांटेक्ट कर सकते हो। एंड हैप्पी पूजा ठीक है। हैप्पी पूजा मैम। हाँ, ठीक है, अब तुम लोग लीव कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम, थैंक यू। थैंक यू मैम। अभी दे लेके चलो